میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ جوہری معاملے پر جنیوا میں ایران کے 6 عالمی طاقتوں سے مذاکرات، نومبر میں ہوئے معاہدے کی عمل آوری پر ہوا غور۔ امریکہ نے وسطی افریقی جمہوریہ کو تشدد ختم کر کے انتخابات کرانے کی دی وارننگ۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور نے کی صدر سے ملاقات۔ اور ہندوستانی سفارتکار دیویانی معاملے پر امریکہ کی ہٹ درمی برقرار، حکومت ہند نے دہرایا معافی کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاملے پر گزشتہ ماہ ہوئے معاہدے کی عمل آوری کے لیے جمعرات کو جنیوا میں ایک بار پھر بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں 6 عالمی طاقتوں، یورپی یونین اور ایران کے وفود نے شرکت کی اور جوہری معاملے پر ہوئے معاہدے کی عمل آوری پر تبادلہ خیال کیا۔ جنیوا میں جمعرات کو یورپی یونین، امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وفود نے ایران کے وفد کے ساتھ جوہری معاملے پر ایک بار پھر بات چیت کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی اس بات چیت میں 24 نومبر کو ہوئے معاہدے پر عمل آوری کے سلسلے میں غور کیا گیا۔ جنیوا کی یہ میٹنگ دراصل وینا میں ایرانی جوہری معاملے پر 9 دسمبر کو شروع ہوئے مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت نہ ہونے کے پیش نظر ہوئی ہے۔ دراصل ایران نے وینا میں عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ساتھ 9 دسمبر کو شروع ہوئی بات چیت سے درمیان میں ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ ایران کے مطابق اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف امریکہ ایران پر سے کچھ تحدیدات ہٹانے پر راضی تو ہوا، لیکن دوسری جانب اس نے نئے سرے سے کچھ ایرانی کمپنیوں اور افراد کو بلیک لسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے مطابق ایسی صورت میں نومبر میں ہوئے معاہدے پر عمل آوری پر غور کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں نے ایک بار پھر جنیوا میں ایرانی وفد کے ساتھ بات چیت کی اور نومبر میں ہوئے معاہدے پر عمل آوری کی راہ تلاش کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا، اس کی تفصیلات فی الوقت معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ ادھر صدر براک اوباما اور امریکی کانگریس کے درمیان ایران پر امکانی پابندیوں کے بل پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ امریکی کانگریس ایران پر مزید پابندیوں کے حق میں ایوان میں ایک بل کو منظور کرانا چاہتی ہے، تاہم امریکی صدر اس بل کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس ضمن میں کانگریس کو خبردار کیا ہے کہ ایران پر نئی پابندیوں سے سفارتی کوششوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور مجوزہ نیوکلیائی معاہدہ متاثر ہو سکتا ہے۔ سینیٹ کے مطابق اگر ایران گزشتہ ماہ ہوئے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پھر حتمی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو تہران پر تازہ پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ شام کے بحران کے حل کے لیے اگلے مہینے سوئٹزرلینڈ میں امن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں کن ممالک کو مدعو کیا جائے، اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے آج جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں شام کے سفیر برائے عرب لیگ و اقوام متحدہ اخضر براہیمی، امریکہ اور روس کے وفود نے ملاقات کی۔ ان میں شام کے حمایتی روس کی نائب وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف، امریکہ کی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے سیاسی امور وینڈی شرمن شامل ہیں۔ خیال رہے کہ روس کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹروکس میں امریکہ شام کی اپوزیشن اور اسد حکومت کے درمیان 22 جنوری سے امن مذاکرات کا انعقاد ہوگا۔ شام میں گزشتہ 3 سال سے حکومت اور اپوزیشن حامی فوج کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 1,20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مصر میں فوجی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف معزول صدر محمد مرسی کی حامیوں کا احتجاج جاری ہے۔ آج بعد نماز جمعہ دارالحکومت قاہرہ اور غزہ شہر میں ہزاروں مرسی حامیوں نے حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ مظاہروں کے دوران پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھار اور اشک آور گیس کا استعمال کیا۔ احتجاجی محمد مرسی کی بطور صدر بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرسی حامیوں کا احتجاج دبانے کے لیے حکومت نے نیا قانون بنایا ہے۔ اس قانون کے تحت بغیر انتظامیہ کی اجازت کے مظاہروں اور ریلیوں کے انعقاد پر پابندی ہے، لیکن مرسی حامی اس نئے قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً احتجاج درج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ نبیل الفہمی نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔
اس دوران نبیل فہمی نے مصر کے عبوری صدر عدلی منصور کا ایک خط بھی وزیر اعظم شنزو آبے کے حوالے کیا۔ ایک دن قبل جمعرات کو فہمی نے جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کیشیدا سے ملاقات کی تھی۔ اس دوران دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات اور خارجہ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے کہ جاپان مصر کی خارجہ پالیسی اور جمہوری عمل کی تائید کرتا ہے۔ امریکہ نے شورش زدہ افریقی ملک وسطی افریقی جمہوریہ کے حکام کو تشدد ختم کر کے ملک میں انتخابات کرانے کی سخت الفاظ میں وارننگ جاری کی ہے۔ یہ وارننگ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتا پاور نے افریقی ملک کے اپنے ایک روزہ دورے میں صدر میخائل جوٹودیا سے ملاقات کے دوران دی۔ خیال رہے کہ وسطی افریقی جمہوریہ میں گزشتہ دنوں ہوئے تشدد میں صرف دارالحکومت بانگوئی میں کم سے کم 500 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتا پاور نے وسطی افریقی جمہوریہ کے اپنے دورے میں ان کیمپوں کا دورہ کیا جہاں تشدد کی وجہ سے بے گھر ہوئے لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ سمانتا پاور نے صدر مشل جوتودیا سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد سمانتا پاور نے بتایا کہ صدر جوتودیا نے آئندہ سال کے آخر تک ملک میں انتخابات کرانے اور اس کے بعد عہدے سے دستبردار ہو جانے کا وعدہ کیا ہے۔ Powerful people generally don't like giving up power. I think that's probably many of your experience, certainly my experience. It is extremely important that these powerful people, the President, the Prime Minister, and the head of the Council, have agreed to relinquish power as soon as those elections occur, and they have agreed to hold those elections no later than February 2015. صدر مشل جوتودیا نے مسلم سلیقہ باغیوں کی مدد سے مارچ میں اقتدار سنبھالا تھا، تاہم ان کی حکومت کی مشکلات اس وقت شروع ہوئی جب سابقہ حکومت کے فوجیوں کی حمایت سے عیسائی ملیشیا نے خون ریز مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران تشدد نسلی رنگ بھی اختیار کر گیا جب گزشتہ دنوں عیسائی بلوائیوں نے مسلمانوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا تھا۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے تحت وسطی افریقی جمہوریہ میں فرانس کے 1600 فوجیوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے ایک بیس پر باغیوں نے حملہ کیا ہے۔ اس کیمپ میں مقامی لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس حملے میں ہندوستان کے 3 امن فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اڈے پر 40 سے 43 ہندوستانی فوجی بھی تعینات تھے۔ موصولہ خبروں کے مطابق جنوبی سوڈان کی شورش زدہ جونگلی ریاست میں حملہ آوروں نے اقوام متحدہ کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے مشن نے اس حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ شورش کے سبب کچھ ہی عرصے پہلے جنوبی سوڈان عالمی نقشے پر ابھر کر آیا ہے۔ Reportedly forced an entry into the UNMISS temporary operating base to reach those civilians. Fighting took place, and we have yet to ascertain the situation. We fear there may have been some fatalities, but can't confirm who and how many at this stage. سوڈان کے دارفور خطے میں اقوام متحدہ کی امن افواج نے شوٹنگ کی مشق کی۔ خطے میں امن افواج کی اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشق ہے۔ شورش زدہ سوڈان میں جوائنٹ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن کے تحت 7 ممالک کی افواج یہ مشق کر رہی ہیں۔ خطے میں مشق کے لیے مناسب جگہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے امن افواج گزشتہ 6 سالوں سے اپنی مشقیں نہیں کر پائی تھی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریزیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5000 روپے فی گز۔ سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی، ویئر لائف کمز الائیو۔ نورانی تیل کی مالش بچپن سے بڑھاپے تک کا ساتھ۔ نورانی تیل ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خریدیں۔ آہ سے واہ، کیا بات ہے! قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا آملہ ڈرنک راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ دیو بھومی کے سمگر وکاس کے لیے اتراکھنڈ سرکار کی پہل۔ 5 वर्ष کی سیوا پوری کر چکے دینک سنویدا کرمیوں کے ونیمتیکرن کا راجیہ سرکار نے لیا فیصلہ۔
14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात दिव्यानी मामले पर अमरीकी हठधर्मी की। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी मामले पर हिंदुस्तान के मुतालबात का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका ने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने देवयानी के खिलाफ इल्जामात वापस लेने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागडे पर लगे इल्जामात इंतहाई संगीन हैं और ऐसे इल्जामात को अमेरिका में काफी संजीदगी से लिया जाता है, लिहाजा इल्जामात वापस लेने पर गौर किए जाने की बात दुरुस्त नहीं है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा कि अमेरिका की कोशिश ये है कि इस मामले पर माहौल में आई गर्माहट में नरमी लाते हुए कानूनी अमल को चलने दिया जाए। Have said every year in diplomatic notes to every country that has diplomats here throughout the world that there are obligations they have for their staffs when they bring them to the United States. We make those obligations very clear, and we take any allegations that they haven't done so very seriously. So certainly there's no discussion like that going on. We just want the process to move forward. हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागडे के खिलाफ इल्जामात के मामले में अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिका ने देवयानी पर आयद इल्जामात बिला शर्त हटा लिए जाने के हिंदुस्तान के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने बातचीत के जरिए इस मामले में किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागडे के साथ बदसलूकी के मामले में अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़ा जूं का तू है। हिंदुस्तान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो देवयानी के खिलाफ इल्जामात बगैर शर्त हटाए और इस मामले पर माफी मांगे, लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान के दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। अमेरिका की इस जिद के बावजूद हिंदुस्तान के वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि देवयानी मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और किसी न किसी मंतिकी नतीजे पर पहुंचने में कामयाबी मिलेगी। When we get our conversation to a logical conclusion and there is an outcome, one way or the other, we will be very happy to share that outcome with you. I'm conscious of the fact that this is a valuable relationship between two countries. I think that as when we deal with each other, we have to keep that entire gamut of different dimensions of our relationship and keep in mind. And I think that goes for both of us. If we are conscious of this, I'm sure that they are equally conscious of this. If we think it's important to preserve that relationship, I'm sure that they think as well that it's important to preserve that relationship. ईटीवी को मौसूल हुई इत्तलात के मुताबिक देवयानी मामले के हल के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत जारी है। इस मामले पर जुमा को भी हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर नैन्सी पॉवेल ने वजारत खारजा के ओहदेदारों के साथ बातचीत की। इससे कबल जुमेरात को इस मामले में अमेरिका की जानिब से कुछ मुस्बत इशारे मिले थे। जुमेरात को सियासी उमूर की अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी वेंडी शर्मन और हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह के साथ हुई बातचीत से मसले के जल्द अज जल्द हल की उम्मीद बंधी थी, लेकिन देवयानी मामले में हिंदुस्तान के मुतालबे पर अमेरिकी रुख में अब तक कोई तब्दीली नहीं आई है।
हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, हमने ऐसे करना है कि जो हमारा स्टैंड है वो रहे। हमारी सुरक्षा प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी वहाँ लेडी की सुरक्षा और उसकी डिग्निटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे। देवयानी मामले पर अमेरिका और हिंदुस्तान के वजीर खारजा के दरमियान बातचीत अभी बाकी है। उम्मीद है कि इस बातचीत से इस मामले का कोई हल निकल आए। भारत सरकार के कड़े रुख के बावजूद अमेरिका अपनी हेकड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में अमेरिका में तैनात भारतीय डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े के अधिकारों की अनदेखी इसी तरह जारी रह सकती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ शलन रुवांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी का कहना है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को ये वाज़ेह कर दिया है कि हमारे किसी भी सफारतकार या अफसर के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो इस मामले पर गौर करे और पछताए। भारत का सवाल है, भारत ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि अगर हमारे किसी राजदूत के साथ बाहर हमारे जो अफसर पोस्टेड हैं उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देवयानी जी के साथ जो हुआ है वो बदसलूकी से भी ज्यादा था और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करें, उसके ऊपर पश्चाताप करें, क्योंकि किसी भी मुल्क के जो डिप्लोमैट्स हैं या राजदूत हैं उनको इस तरह से का बर्ताव कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। और विदेश मंत्रालय ने अपने तरफ से, विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि इसको हम एक निष्कर्ष पर लेके जाएंगे। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी के साथ बदसलूकी पर हिंदुस्तानी हुक्काम में भी सख्त नाराजगी पाई जा रही है। नई दिल्ली में प्लानिंग कमीशन की सेक्रेटरी सिंधुश्री कुल्लर ने लाडली मीडिया के एक प्रोग्राम में अमेरिकी सफीर नैन्सी पावेल के साथ स्टेज साझा करने से इनकार कर दिया। कुल्लर ने कहा कि वो हुकूमत हिंद के साथ है। It's not right. तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने आज हैदराबाद में वाक़ अमेरिकी कौंसल खाने का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तेलुगु देशम पार्टी के कारकुन हिंदुस्तानी सफीर देवयानी के साथ बदसलूकी मामले में अमेरिका से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। इस एहतजाज में तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव और दीगर लीडर शरीक थे। एबीवीपी के कारकुनों ने भी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया, जबकि बीजेपी के कारकुनों ने रियासत के बेशतर मकामात पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अमेरिका का अलामती पुतला नजर आतिश किया। देवयानी बदसलूकी मामले के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी के कारकुनों ने आज हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसिल खाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस मामले में अमरीका से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि अमरीका की जानिब से हिंदुस्तानियों के साथ बदसलूकी का ये नया वाक़या नहीं है। इससे पहले भी साबिक़ सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की जा चुकी है। ఈ అవమానానికి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ తగిన ప్రతీకారం తీసుకుంటుందని చెప్పి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ తెలియజేస్తుంది. కేవలం ఇది దేవానికి జరిగినటువంటి అవమానం కాదు, యావత్ భారతదేశానికి 120 కోట్ల మందికి జరిగినటువంటి అవమానం. వెంటనే అమెరికా ప్రభుత్వం బేషరతుగా భారత ప్రజలకు దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పి కేసును ఉపసంహరించుకుని విడుదల చేయాలని చెప్పి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తుంది. उधर बीजेपी कारकुनों ने इस मामले के खिलाफ वरंगल में भी शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अमेरिका का अलामती पुतला नजर आतिश किया। జరగడం మనం తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన విషయం. ఏ ఒక్కరిని అవమానించడం అంటే మనందరికీ దూతగా వెళ్లిన ఆమెను అవమానించడం అంటే మనందరినీ అవమానించినట్టే. కాబట్టి మేము భారతీయ మహిళా మోర్చా తరపున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా దేశవ్యాప్తంగా ఈ ధర్నాలన్నీ జరుగుతాయి. మేము దేవయాని కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లగలం, పార్లమెంట్ లో కూడా స్తంభించగలం. కాబట్టి ఆమె మనకు ఒక ప్రతినిధిగా ఆ దేశంలో ఉంటుంది. ఆమెకు రక్షణ లేనప్పుడు, ఆమెను అవమానించినప్పుడు మన ఇండియాలో అందరిని అవమానించినట్టే, మన భావజాలాన్ని అవమానించినట్టే.
మనము వెనకటి నుండి మన భారతదేశంలో దూత ఎలాంటి పని చేసినా క్షమించి వదిలేస్తారు. అది మనకు వెనకటి నుండి ఉన్న ఒక నానుడే. అదే అలాంటిది ఒక మహిళను కూడా చూడకుండా మన ఇండియాని అవమానించాలనుకున్నాడు. बीजेपी कारकुनों ने दीगर मकामात पर भी अमरीकी रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। छोड़ो खजान, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने 9 साला दौर इख्तिदार में हुई गलतियों पर पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगी है। कल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने जो भी फैसले किए थे वो खुलूस नीयत से किए थे। मुशर्रफ ने कहा कि अगर कुछ लोगों को उनके फैसले गलत लगते हों तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के लिए था। ये पहला मौका है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में किए गए इक़दामात पर मांगी है। ख्याल रहे कि परवेज मुशर्रफ पर पाकिस्तान की कई अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमों का सामना है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने इन पर नवंबर 2007 में इमरजेंसी नाफिज करने की वजह से गद्दारी का मुकदमा भी दायर किया है। इस मामले की समाअत के लिए उन्हें 24 दिसंबर को अदालत में हाजिर होना है। परवेज मुशर्रफ ऐसे पहले साबिक फौजी हैं जिन पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलने जा रहा है। किसी कोई समझता है मैंने गलत किया तो वो गलती हो सकती है, दानिश्ता तौर पे सोचे समझे बदनीयती नहीं होगी, उसमें गलती होगी। तो अगर कोई गलती समझता है तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। इस मौके पर मुशर्रफ ने मुल्क की मुख्तलिफ शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमों से दहशतगर्दी छोड़ने की अपील की। चाहे वो तालिबान हो या TTP है या TNSM है या SSP सिपाही साहबा है या जो कोई भी है, इनसे मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हो, आप इसको ना करें, पाकिस्तान को तबाह मत करो, आप छोड़ें, ये दहशतगर्दी बंद करें ताकि हम हुकूमत अच्छी चले और सामने हम आगे जाएं। बरतानिया की दारुल-हुकूमत लंदन में जुमेरात की रात अपोलो थिएटर की छत का कुछ हिस्सा गिरने से कम 80 अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 4 शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त थिएटर में शो जारी था और लोगों की एक बड़ी तादाद हॉल में मौजूद थी। तर्जुमान के मुताबिक शो के दौरान थिएटर में तकरीबन 270 अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद तलाश और बचाव का काम मुकम्मल करके थिएटर को सील कर दिया गया है। अब इस इमारत का मुआयना किया जाएगा। हादसे के बाद वजीर आजम डेविड कैमरन ने ट्वीट किया और इमदादी खिदमात का शुक्रिया अदा किया। इमारत का मुआयना जारी है, ताहम अभी तक हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। अमेरिका के शहर शिकागो में एक उम्र रसीदा शख्स समेत 3 अफराद अपनी अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए।
मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोली मारकर हलाक किया गया। 74 साल शख्स जनूब मशरक में ब्लॉक नंबर 7000 पर अपनी गाड़ी में मुर्दा पड़ा मिला, जबकि 3 ब्लॉक के थोड़े ही फासले पर एक दूसरा शख्स अपनी गाड़ी में मुर्दा हालत में पाया गया। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल तीसरे शख्स को उस वक्त गोली मारकर हलाक किया गया जब अपनी कार से बाहर आ रहा था। इन 3 कत्ल के मामले में पुलिस ने चंद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। गजा पट्टी में इसराइली नाकाबंदियों की मार झेल रहे नौजवान फिलिस्तीनी फिल्म साजों ने दुनिया की तवज्जो फिलिस्तीनी बाशिंदों की मुश्किलात की तरफ मबजूल कराने के मकसद से एक कमर्शियल वीडियो बनाई है। ये वीडियो दरअसल वोल्वो ट्रक के उस कमर्शियल वीडियो की नकल है जिसमें बेल्जियम के आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार जेन क्लाउड वैन डैम को स्टंट करते हुए फिल्माया गया है। أصحى والكهرباء لسه ما أجت والمي بتيجي لما بتقطع الكهرباء. اشتقت آخد شاور. كل هاد ما بيخلي فان دام أحسن مني بس للأسف ما في بنزين بالبلد. इन नौजवान फलस्तीनी फिल्म साजों के ग्रुप का नाम तशवेश है। इन्होंने जो कमर्शियल वीडियो बनाई है वो मशहूर अदाकार वैन डैम की वीडियो की नकल है। वैन डैम को 2 वॉल्वो ट्रकों के बीच स्टंट करते हुए दिखाया गया है। ताहम इसकी नकल में एक फलस्तीनी शख्स को 2 ऐसी कारों के बीच दिखाया गया है जिन्हें 5 लोग धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि नाकाबंदियों की वजह से गजा पट्टी में न तो तेल दस्तयाब है और न ही बिजली की फराहमी है। ग्रुप के एक मेंबर महमूद कहते हैं, قررنا انه نستخدم الفيديو ونسخره في قضيتنا في مشكله الحصار في غزه، انه كيف سياراتهم تشتغل بتقنيه كثير عاليه واحنا في غزه مش متوفر سولار، واذا توفر سولار بيكون يعني غالي باهظ الثمن كثير، الناس ما بتقدر تشتري، فاغلب السيارات حديثه الصنع عندنا بغزه واقفه، كمان قصه الكهرب، فيعني اجتنا الفكره انه كيف نوظف الاعلان هذا بما انه مشهور عالميا وفي اقبال على الاعلان بشكل كبير، وفي كثير من الناس تناولوا الاعلان على مستوى العالم بس بشكل ساخر يسخروا من الإعلان نفسه، بس احنا استخدمناه ككوميديا سوداء انه نوصل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال هذا الإعلان. फलस्तीनी कमर्शियल वीडियो में ये बताने की भी कोशिश की गई है कि इसराइल की जालिमाना नाकाबंदियों की वजह से फलस्तीनी अवाम जिंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा तस्वुर करते हैं, जैसा कि मिस्र के मशहूर सिंगर अमर दियाब के गाए हुए एक गाने के बोलों से जाहिर होता है, जिनके माने हैं कि मैं जिंदा हूँ मगर जिंदा नहीं। महमूद कहते हैं कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम नाकाबंदियों की वजह से अपनी मुश्किलात दुनिया के सामने पेश करें। أسخر في قضية غزة وأقدم فيه فكرة جديدة اللي هي الشباب اللي ورا بتدفع السيارات، اللي هي أكثر شيء لفت انتباه الناس في الإعلان. ما حدش كان متوقع إنه السيارات تكون بتندفع دفع، يعني سيارات مطفية وحدا بزوجها. فوقع اختيارنا للإعلان هذا لأنه حاليا إعلان له تسويق كبير، الناس عليه يعني عليه إقبال، الناس حبته كثير، فالحمد لله كنا موفقين في اختياره. आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हजार 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा
यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे